Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So, welcome to my new video. In this video, we are going to learn about the fourth lesson of history, the Mughal Empire. So, you should take your SST textbook and open your page number 40. Okay. In the beginning of this lesson, there are some new words and their meanings, and these words especially used in the medieval period, means in the Mughal Empire. Okay, so you should understand the meaning of these words here. Okay, first, branding means making a mark with hot metal, especially on animals, to show ownership. During the medieval period, rulers used the animals for war, for battles, and they were marked on these animals with hot metal. Okay, that is called the branding. Okay, they were branded, these animals, and for what? To show ownership. Okay, then cavalry. Next word is here cavalry, means part of the army that fought on horses. Means during the medieval period there were two types of the soldiers. Um, one types of soldiers were on the horses. Okay, means horses के पीठ पे बैठ के ये वॉर करते थे. These soldiers were called the cavalry. Okay, part of the army that fought on horses. Then next word is here fallow, means land not used for growing crops to improve its quality. Means land didn't use for crops. Okay, जो लैंड जो लैंड पे क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जाते वो वैसे ही रखी जाती है फॉर इंक्रीज द फर्टिलिटी. ओके, दैट इज कॉल्ड द फेलो. इन्फेंट्री means soldiers who fight on foot, and there were two types of the soldiers. One types of soldiers were fought on horses. Okay, and one types of soldiers were fight on foot. Okay, these soldiers were called the infantry. means कुछ soldiers पैदल रहते थे तो कुछ horses पे रहते थे. तो पैदल soldiers को क्या बोलेंगे हम? infantry. Okay, कर्निश means to place the right hand upon the forehead and bend downwards as a form of salutation. कर्निश means it is one form of salutation है ये. Okay, then next, monarchy means a system of government where king or queen rules the state. There are three types of government. We have seen about it in the civics in last year. Okay, which are these? Dictatorship, monarchy and democracy. Okay, among these that monarchy is one type of government, that is a system of government. Okay, then मुकद्दम means village headman. मुकद्दम किसे कहा जाता था? विलेज के जो भी हेड पर्सन रहते थे उन्हें मुकद्दम कहा जाता था. नोबल्स means nobility, people of high social position and generally connected to royal lineage who exercise influence. What is mean by nobles? जो powerful persons रहते थे during the medieval period, and these persons specially were relatives of ruler. Okay, ये जो nobles रहते थे ये relatives रहते थे rulers के, kings के. These persons were called the nobles. Okay, regent means a person selected to act as head of a state when the ruler is a minor, not present or very weak. अगर किंग रूलर वीक है या वो प्रेजेंट नहीं है तो एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता था, हेड पर्सन. ओके, that is called the regent. Next, taslim. Taslim means
a custom in which the back of the right hand is placed on the floor and lifted as a person stands. It was a custom. Custom means riti rivaj. Okay, ये एक custom था तस्लीम. Okay, now come to the lesson. द मुगल्स एस्टाब्लिश अ ह्यूज एम्पायर. बहुत ही बड़ा एम्पायर यहाँ पे एस्टाब्लिश किया था बाय मुगल्स. ओके, ह्यूज मीन्स बिग, बहुत बड़ा. दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स. और ये जो मुगल्स एम्पियर्स थे ये बहुत ही अच्छे काबिल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे. एडमिनिस्ट्रेटर्स मीन्स प्रशासक. ओके, ब्रेव वरियर्स. ओके, जो भी बैटल्स, जो भी वॉर्स वो लड़ते थे तो उसमें उन्हें जीत हासिल होती थी. ओके, दैट इज कॉल्ड द ब्रेव वॉरियर्स. And left a political legacy that keeps them alive till date. Many sources of medieval history prove that the royal Mughal emperors were truly interested in keeping the records of their achievements and other aspects of their rings. And there are many sources of medieval history. You know, sources, we get the information through some objects, some records. These records, these objects are called the sources. Okay, and there are many sources of medieval history, and we get information about these Mughals rulers, कि ये जो मुगल्स रूलर्स थे ये अपने जो भी इवेंट्स उनके कोर्ट में या उनके रिंग्स में होते थे, जो भी अचीवमेंट्स वहाँ पे होती थी. अचीवमेंट्स मीन्स जो भी उन्हें कामयाबी हासिल होती थी तो ये उसका सभी रिकॉर्ड वहाँ पे बनाते थे. ओके, एंड जो भी कुछ अदर एस्पेक्ट्स वहाँ पे होते थे वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते थे. Autobiographies such as the Babarnama and Jahangirnama are examples of such efforts. And there are Babarnama and Jahangirnama. These are the autobiographies. You know, autobiographies means आत्मचरित्र, खुद के बारे में कुछ लिखना. That is called the autobiographies. Okay, and there are Babarnama and Jahangirnama, and these are the examples of such efforts. Okay, the first 6 मुगल्स आर कॉल्ड द ग्रेट मुगल्स. और जो फर्स्ट 6 मुगल्स थे उन्हें ग्रेट मुगल्स कहा जाता था. बाबर 1526 to 1530. Babur was the first Mughal emperor, and this Babur was first emperor of Mughal Empire. Okay, he was born in small place called Fargana in Central Asia. And where he was born? In Central Asia, Fargana. Okay, it was at the tender age of 12 years that he became the ruler of Fargana in 1491. And when he was only 12 years age, okay, he became the ruler of Fargana in 1491. Babur tried to conquer Samarkand but failed, and Babur tried to control the Samarkand also, but he was failed there. Okay, in 1504 he conquered Kabul, and 1504 में ये जो बाबर थे इन्होंने काबुल कंट्रोल किया था, काबुल पे जीत हासिल की थी. When Babur was ruling Fargana in Central Asia, at the same time the Lodhis were ruling over the Delhi Sultanate. and जहाँ पे बाबर फरगाना में रूल कर रहे थे, सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे, उसी टाइम दिल्ली सल्तनत पे लोधी का रूल चल रहा था, लोधी राज कर रहे थे. द लोकल रूलर्स वर नॉट हैप्पी विद द लोधीज. और जो भी लोकल रूलर्स थे इन आवर इंडिया, they were not happy, okay, because of these Lodhis. As a result, they sent a message to Babur to come to India and defeat the Lodhis. और इसकी वजह से उन्होंने बाबर को मैसेज किए कि आप इंडिया आओ और लोधी को हराओ. ओके, more than the invitation, it was the wealth and richness of Hindustan that lured Babur
टू प्लान द एक्सपीडिशन टू इंडिया, और बहुत सारे इनविटेशन के बाद उन्होंने प्लान बनाया इंडिया आने का. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. In 1526, Babur faced Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. And when this first battle of Panipat, first war of Panipat, it was the famous battles. Okay, in 1526, the Lodi army was huge when compared to the Baburs. एंड जो लोदी की आर्मी थी ये बहुत ही बड़ी आर्मी थी बाबर के आर्मी से. बट बाबर हैड अ गुड कैवलरी which had fought many wars and an efficient artillery. एंड बाबर जो थे इनके जो भी आर्मी थी वो बहुत ही अच्छी कैवलरी थी. यू नो कैवलरी पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फॉट ऑन हॉर्सेस पे जो सोल्जर्स वॉर करते थे उन्हें कहा जाता था कैवलरी. ओके, और ये जो बाबर थे इनके पास बहुत ही गुड कैवलरी थी. ओके, एंड उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी थी. विदाउट मच डिफ़िकल्टी बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी. एंड बहुत कुछ न करते हुए बाबर ने यहाँ पे जीत हासिल की, इब्राहिम लोदी को हरा दिया. ही सक्सेसफुली कॉन्क्यूर्ड दिल्ली एंड आगरा. इन्होंने दिल्ली और आगरा को कॉन्क्यूर्ड कर लिया, जीत लिया. ओके, ऑन नेक्स्ट पेज 41, द बैटल ऑफ खनवा. The following year, in 1527, the Battle of Khanwa took place. Babur fought this battle with Rana Sangh of Mewar, and in 1527, okay, next year, यहाँ पे बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खनवा. एंड ये जो बैटल ऑफ खनवा थी ये किसके साथ हुई थी? राणा संग और मेवार के ये जो राणा संगा थे इनके साथ बाबर ने लड़ाई की थी 1527 में. बाबर इजीली डिफीटेड हिज ओपोनेंट, और बाबर ने इनको भी हरा दिया इजीली. ओके, 2 years लेटर ही ऑल्सो डिफीटेड द अफगान चीफ्स ऑफ घाघरा. एंड 2 साल बाद उन्होंने अफगान के जो चीफ्स थे घाघरा इन्हें भी हरा दिया. ओके, इन अ शॉर्ट स्पैन of 4 years, Babur conquered a number of territories that extended from Himalayas to Gwalior and from Indus to Bihar. And 4 ही साल में बाबर ने बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ज़्यादा टेरिटरीज यहाँ पे हासिल की थी. फ्रॉम हिमालयस टू ग्वालियर एंड फ्रॉम इंडस टू बिहार. With this conquest, Babur's position was secured in northern India. He died in 1530, and when this Babur died here in 1530. Okay, Humayun, which was the period of this Humayun, 1530 to 1540, and 1555 to 1556. The eldest son of Babur, और ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे, नाजिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, succeeded him in 1530, and when he had got the throne in 1530. Okay, हुमायूं had 3 brothers, और हुमायूं को 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल एंड द अस्कारी. द नेम हुमायूं मीन्स लकी, और इनका जो नाम था हुमायूं इसका मीनिंग है लकी. बट इन रियलिटी हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. एज अ रूलर ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, और इन्हें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस को फेस करना पड़ा एज अ रूलर. ओके, ही वॉज लेफ्ट अलोन बिकॉज he did not get actual support of his brothers who were unhappy with the small areas under them. And ये अकेले हुए थे. Why? Because his brothers did not support to him, because they were unhappy. इनके जो भाई थे ये दुखी थे क्योंकि इन्हें बहुत छोटा एरिया मिलने की वजह से. ओके, हुमायूंस tumultuous life. Tumultuous means प्रॉब्लम से भरा हुआ, डिस्टर्बेंस से भरा हुआ लाइफ, उतार चढ़ाव से भरा हुआ लाइफ, इसे हम बोलेंगे ट्यूमल्टियस लाइफ. ओके, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases.
द फर्स्ट फेज 1530 to 1540 वॉज अ टाइम ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्रेस। ये कौन सा पीरियड था? स्ट्रगल का पीरियड था, स्ट्रेस का पीरियड था, बहुत ही टेंशन भरा पीरियड था। ही फेस्ड अ टफ स्ट्रगल अगेंस्ट शेर शाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। और गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह और बिहार के जो शेर शाह सूरी थे, इनके साथ इनके अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रगल चल रही थी। ओके। In 1532, Humayun and Sher Shah fought a battle for the first time. And 1532 में बैटल हुई थी शेर शाह एंड हुमायूं के बीच में। हुमायूं वॉन एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ चुनार। और यहाँ पे हुमायूं जीते थे और उन्होंने फोर्ट चुनार कैप्चर किया था। In 1534, Humayun captured Gujarat and Malwa after defeating Bahadur Shah. एंड 1534 में गुजरात एंड मालवा भी इन्होंने कंट्रोल किया था, कैप्चर किया था। ओके। बट हुमायूं हैड नो टाइम टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। कंसोलिडेट मीन्स कलेक्ट, इकट्ठा करना। ओके। शेर शाह अगेन अटैक्ड हुमायूं एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल्स ऑफ चौजा एंड कनज। और ये जो शेर शाह थे उन्होंने फिर से हुमायूं पे अटैक किया और उन्हें हरा दिया। In the second phase, what was there in second phase, which was the period of this second phase 1540 to 1545? The Afghan king Sher Shah Suri annexed his empire. और ये जो अफगान किंग थे शेर शाह सूरी, इन्होंने इनका एम्पायर छीन लिया था। शेर शाह ड्रॉ हुमायूं आउट ऑफ हिज किंगडम। और शेर शाह ने हुमायूं को बाहर निकाल दिया था। हुमायूं बिकेम अ रिफ्यूजी एंड एस्केप्ड टू पर्सिया। और हुमायूं अब पर्सिया चले गए थे, उन्हें भागना पड़ा अपना एम्पायर छोड़ के। ही स्पेंट द नेक्स्ट 15 ईयर्स इन एक्साइल। और आगे के 15 ईयर्स इन्होंने वनवास भोगा। एक्साइल मीन्स वनवास। ही वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट शेर शाह सूरी एंड हिज सक्सेसर्स रिंग्स सुप्रीम इन इंडिया। It was in third phase. And which was the third phase of Humayun life? 1545 to 1555. Okay. That Humayun made Kabul his base. Here he made preparations to recover the lost territories in India. और यहाँ पे इन्होंने प्रिपरेशन की थी, जो भी उनकी टेरिटरीज उन्होंने गंवाई थी ये फिर से हासिल करने के लिए। शेर शाह हैड डाइड एंड हिज सक्सेसर्स वर वीक। और शेर शाह की डेथ होने के बाद उनके जो भी सक्सेसर थे, सक्सेसर्स मीन्स वारिस, ये वीक थे। फाइनली 1555 to 1556 हुमायूं वॉज सक्सेसफुल एंड गॉट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली। एंड 1555 से लेके 1556 में यहाँ पे हुमायूं सक्सेसफुल रहे और उन्होंने फिर से सिंहासन हासिल किया दिल्ली का। बट एज अ लक वुड हैव इट ही डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर दिस। लेकिन ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं हो पाए, ज़्यादा दिन यहाँ पे ये टिक नहीं पाए। इट सो हैपन दैट ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी शेर मंडल एंड डाइड इन 1556। और उनकी जो लाइब्रेरी थी उनके वहाँ से ये नीचे गिरे और उनकी डेथ हो चुकी थी 1556 को। ओके। शेर शाह सूरी, next ruler is here Sher Shah Suri, which was the period of this Sher Shah Suri 1540 to 1545. Sher Shah Suri was the most famous ruler of the Suru dynasty. Sher Shah was the son of an Afghan जागीरदार फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। और ये जो शेर शाह थे ये किसके बेटे थे? अफगान जागीरदार जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से थे। द रियल नेम ऑफ शेर शाह वॉज फरीद खान। रियल नेम क्या था शेर शाह का? फरीद खान। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर। और इन्हें शेर क्यों कहा जाता था? उन्होंने टाइगर को मारा था। शेर शाह वॉज एन एम्बिशियस रूलर। ये एम्बिशियस रूलर थे। एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी, कुछ पाने की इन्हें
जिद थी, ओके, इच्छा थी. Although Sher Shah was a fine ruler with exemplary qualities, but the Sur dynasty did not survive for long. लेकिन ये जो सुर डिनेस्टी थी ये ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू उन्होंने राज नहीं किया, ज़्यादा दिन तक ये सरवाइव नहीं हो पाई. ओके, ये बहुत ही फाइन रूलर थे, बहुत ही ब्रेव रूलर थे, लेकिन उनकी जो डिनेस्टी, उनका जो राज घराना था, ये ज़्यादा दिन तक यहाँ पे वर्क नहीं कर पाया, रूल नहीं कर पाया. ओके, नेक्स्ट, अचीवमेंट्स. शेर शाह बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन 2 बैटल्स. और शेर शाह दिल्ली के सुल्तान बन चुके थे हुमायूं को हरा के. देयर वर 2 बैटल्स between Humayun and Sher Shah. Okay, in a short period of 5 years he built a strong kingdom. और 5 साल के पीरियड में इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बिल्ड किया था. His empire extended from झेलम टू ब्रह्मपुत्र एंड हिमालय टू नर्मदा. एंड इनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका था, स्प्रेड हो चुका था. झेलम टू ब्रह्मपुत्र एंड द हिमालयस टू नर्मदा. Known for his excellent administrative skills, Sher Shah also improved the administration of his territories. ये जो शेर शाह थे ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के, एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के बारे में जाने जाते थे. एंड इन्होंने अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था अपने टेरिटरीज़ का, ये बहुत ही इम्प्रूव किया था. शेर शाह हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी. और इन्होंने जो अलाउद्दीन करते थे एनिमल्स का ब्रांडिंग, स्पेशली हॉर्सेस ब्रांडिंग, तो इन्होंने ये प्रैक्टिस यहाँ पे कंटिन्यू रखी थी. व्हाट इज़ मीन बाय ब्रांडिंग? मेकिंग मार्क विथ हॉट मेटल स्पेशली ऑन एनिमल्स टू शो ऑनरशिप. मीन्स जो भी एनिमल्स वहाँ पे, हॉर्सेस वहाँ पे बैटल्स में यूज़ किए जाते थे, उन्हें हॉट मेटल से मार्क किया जाता था टू शो ऑनरशिप. ओके, तो इसे ब्रांडिंग कहा जाता था. ओके, तो ये प्रैक्टिस यहाँ पे शेर शाह ने कंटिन्यू रखी थी. ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42. welfare measures. Sher Shah is remembered for his concern and welfare of his subjects. Abbas Sherwani wrote हिस्ट्री ऑफ शेर शाह इन 1579. और ये जो अब अब्बास शेरवानी है, इन्होंने शेर शाह के बारे में हिस्ट्री लिखी थी इन 1579. He observed that a philanthropist at heart, शेर शाह was generous. और ये जो शेर शाह थे ये जनरस थे. He gave specific orders that anyone in need of food, और वो स्पेशल ऑर्डर वहाँ पे उनकी थी कि अगर किसी को भी खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, शुड बी फेड एट किंग्स किचन, और उन्हें किंग्स के किचन से खिलवाया जाए. ये उनकी स्पेशल ऑर्डर थी, कोई भी भूखा न रहे. ओके, ही कंस्ट्रक्टेड एन एक्सेलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन हिज एम्पायर. उन्होंने बहुत ही एक्सेलेंट रोड का नेटवर्क यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था उनके एम्पायर में. ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी was one such highway constructed and was called the सड़क-ए-आज़म. और हाईवे, इन्हें क्या कहा, ये हाईवे को क्या कहा जाता था? सड़क-ए-आज़म, ग्रैंड ट्रंक रोड को. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोनारगढ़ इन बंगाल एंड देन पासेस थ्रू लाहौर इन पंजाब एंड एंड्स एट मुल्तान. और ये कहाँ से कहाँ पास होता है? सोनारगढ़ बंगाल से ये स्टार्ट होके लाहौर से पंजाब से पास होके ये मुल्तान में एंड होता है. द सेकेंड रोड इज कनेक्टेड टू मुल्तान वाया लाहौर एंड थर्ड रोड लिंक्स आगरा टू जोधपुर एंड चित्तौड़. Trade and commerce flourished as the interest of the merchants were taken care of. Sher Shah reduced custom duties and ट्रेड और कमर्स, ट्रेड और एंड कमर्स मीन्स बिजनेस, तो ये भी यहाँ पे फ्लरिश हो चुके थे. फ्लरिश मीन्स डेवलप्ड होना. ओके,
तो अगर यहाँ पे मर्चेंट्स केयरफुली वर्क करते हैं तो शेर शाह उनकी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करते थे. He reduced a new coin, he introduced a new coin called the रुपया. इन्होंने न्यू कॉइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, उसे रुपया कहा जाता था. इट रिमेंड अ स्टैंडर्ड कॉइन फॉर सेंचुरीज. शेर शाह वॉज ऑल्सो नोन फॉर प्रोवाइडिंग एन इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम. और शेर शाह के यहाँ पे जो भी जुडिशियल सिस्टम था ये इम्पार्शियल था. मीन्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, पार्शलिटी नहीं होती थी. इसके लिए भी ये जाने जाते थे. फॉर व्हाट? इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम. ओके, जुडिशियल सिस्टम मीन्स न्याय करना. ओके, कोर्ट बोलेंगे हम इसे. The two most exotic examples of architecture of Surs are the Purana Killas in Delhi and the tomb of Sher Shah at Sasaram in Bihar. And there are two examples of architecture. Okay, which are these? Purana Killa in Delhi and tomb of Sher Shah at Sasaram in Bihar. A tomb means samadhi, qabr. Okay, qabr. After his death, he was succeeded by his son Jalal Khan, who took the title of Islam Shah. And इनके डेथ के बाद यहाँ पे इनके सक्सेसर कौन थे? इनके बेटे जलाल खान, और उन्हें इस्लाम शाह का टाइटल मिला था. ओके, नेक्स्ट देयर इज अकबर द ग्रेट. ये जो अकबर थे इनके बारे में कुछ सीरियल्स बनाए हुए हैं, कुछ मूवीज़ बनी हुई है. आपने टेलीविज़न पे इनकी सीरियल देखी होगी जोधा अकबर. अगर नहीं देखी है तो यू कैन वॉच इट, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मुग़ल पीरियड की ये सीरियल से पता चलती है. ओके, एंड देयर इज़ मूवी ऑल्सो ऑफ दिस अकबर. ओके, यू कैन वॉच इट. Jalaluddin Muhammad Akbar was born in Amarkot at the time when his father Humayun was in exile. And ये जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे ये अमरकोट में बॉर्न हुए थे जब हुमायून वनवास में थे. एक्साइल मीन्स वनवास. ओके, उनके फादर जो हुमायून थे ये उनका एम्पायर छोड़ के चले गए थे. ओके, तो तब ये बॉर्न हुए थे. With Humayun's sudden death in 1556, Akbar was made king when he was just 13. जब हुमायूं की डेथ हुई थी, सडनली डेथ हुई थी, तो वहाँ पे अकबर रूलर बने थे जब वो सिर्फ 13 ईयर्स के थे. when 1556 में. ओके, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डिनेस्टी. और सबसे ग्रेट रूलर थे ये मुगल डिनेस्टी के. He brought glory to the Mughal Empire and is therefore known as Akbar the Great. और इन्होंने जो भी मुग़ल डिनेस्टी थी, मुग़ल एम्पायर था, ये ग्लोरियस बना था बिकॉज ऑफ अकबर. एंड दैट्स वाई नोन एज अकबर द ग्रेट. इन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है. ओके, बैराम खान बिकेम द रिजेंट और गार्डियन ऑफ यंग अकबर. और ये एज से छोटे होने की वजह से उनके गार्डियन कौन थे? बैराम खान. ओके, as soon as Akbar assumed power, he defeated Hemu, general of Afghan forces, in the second battle of Panipat. And second battle of Panipat, वहाँ पे हेमू जो थे इन्हें अकबर ने हराया था. ओके, इन 1560 अकबर एंडेड द रिगेंसी ऑफ बैरम खान. और 1560 में ये जो रिगेंसी थी बैरम खान की, मीन्स जो बैरम खान को गार्डियन बनाया था अकबर का व्हेन 1556 को. तो अब ये 1560 में ये जो रिगेंसी थी ये ख़त्म की थी. Akbar took over the reins of his kingdom and followed the policies of conquest and the alliance to consolidate his kingdom. Now, next there are MCQs.
first? What were the first six Mughals known as? There are three options: great Mughals, poor Mughals, and rich and able Mughals. Which is the answer? A option is answer here. Great Mughals. जो पहले सिक्स मुगल्स रूलर्स थे उन्हें ग्रेट मुगल्स कहा जाता था. ओके. देन हु सक्सीडेड शेर शाह सूरी? There are three options: Ahmad Shah, Firoz Shah, and Islam Shah. C option is answer here. Islam Shah. Okay. Now, Akbar's major military campaigns. Akbar made a plan of expansions and set out on campaigns. And अकबर प्लान करते थे. ओके. जो भी कैंपेन्स वहाँ पे होती थी मिलिट्री कैंपेन्स मीन्स मुहिम. ओके. तो उसके लिए कुछ प्लानिंग वहाँ पे किया जाता था, सेट किया जाता था. 1561 मालवा वॉज कॉन्क्वर्ड. 1561 में मालवा पे जीत हासिल की थी. ओके. एंड 1564 Gondwana was conquered. Then 1568, which area conquered the Chittor and the Ranthambore were annexed. Annexed means काबिज करना, कंट्रोल करना. Rana Uday Singh lost the fort of Chittor. 1570. In 1570, Gujarat, Bengal and Orissa were conquered. And 1576, Akbar fought the battle of Haldighati with Rana Pratap, son of Rana Uday Singh of Mewar. He also brought Berar, Khandesh and parts of the Ahmednagar under his control. And 1581 to 98. 1 minute. Kashmir, Sindh, Kandahar and Kabul were conquered. This gave way to closer trade relations with Central Asia and Persia and made northwestern frontiers secure. After this, there are Akbar's policies. We have to study about the policies of Akbar. Okay. Akbarnama informs us about Akbar's rule and his policies which helped him to control the empire. And हमें इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिल रही है? अकबर्स के जो भी रूल्स थे, जो भी उनकी पॉलिसीज थी, इनके बारे में अकबरनामा में. ओके. On next page, page number 43. Wonderful to know. The history of Akbar's rule was written by Abul Fazl. और जो भी अकबर्स की हिस्ट्री है ये अबुल फैज़ल ने लिखी हुई है. अकबर कमीशन हिम टू राइट हिज हिस्टोरिकल अकाउंट अकबरनामा. अबुल फैज़ल सक्सेसफुली रोट द हिस्ट्री इन देयर वॉल्यूम्स and the first and second volumes describes the lineage and the main events in the rings of the Akbar the Great. और जो फर्स्ट और सेकेंड वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स मीन्स बुक. ओके. तो यहाँ पे जो भी मेन इवेंट्स हुए थे अकबर के रिंग्स में तो ये डिस्क्राइब किए हुए हैं. द थर्ड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड द इन ई अकबरी. It gives a detailed account of the Mughal administration, household, revenues, army, etc. Okay. Next, Rajput policy. We have to study about the Rajput policy. Akbar realized very early that a tolerant approach was a must to rule over Hindustan. और अकबर ने ये रियलाइज़ किया था कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो क्या करना है, समझदारी से यहाँ पे वर्क करना है. ओके. फॉर दिस ही टुक सेवरल मेजर्स. और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे लिए थे. मेजर्स मीन्स उपाय. ओके. सॉल्यूशंस.
Akbar was a compassionate emperor. Compassionate means kind person. Okay, दयालु हम हिंदी में बोलेंगे. Even after defeating the Rajput kings, he did not insult or humiliate them. और जो राजपूत रूलर्स वहाँ पे थे, इनके साथ वॉर होने के बाद अगर वो हारते थे तो उनकी इंसल्ट नहीं करते थे ये जो अकबर थे. ओके, ही ट्रीटेड देम विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, और ये उन्हें मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते थे. ही फाउंड दैट राजपूत वॉरियर्स वर ब्रेव एंड लॉयल, और उन्होंने देखा कि ये जो राजपूत वॉरियर्स थे ये ब्रेव थे एंड लॉयल. लॉयल मीन्स ऑनेस्ट पर्सन. ओके, he allowed the Rajput rulers to rule over their territories even after they were defeated in war. उन्होंने ये जो राजपूत रूलर्स थे इनको उनके ही टेरिटरीज़ में रूल करने के लिए अलाउ कर दिया था. इवन दे वर डिफीटेड इन वॉर, वो हारने के बाद भी उन्हें उनकी टेरिटरीज दे दी गई थी रूल करने के लिए. दिस रूलर्स हेल्प अकबर बाय कमांडिंग देयर आर्मी एंड सप्लाइंग कॉन्टिजेंट्स ड्यूरिंग अ वॉर. और ये जो रूलर्स रहते थे हारे हुए, ये जब अकबर वॉर करते थे वहाँ पे ये उन्हें हेल्प करते थे आर्मी सप्लाई करके. ओके, कॉन्टिजेंट मीन्स ट्रूप्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. ओके, now today's topic is completed here. You have to read the lessons and write the difficult words and their meanings. You should search the meanings of these words in dictionary. Okay, बहुत सारे words के meanings मैंने explain करते हुए ही यहाँ पे दे दिए हैं, but there are many other difficult words also. Okay, you should find it. Have a good day.